Okay. So for this question, if you recall that we studied the derivation to this one in the class, and that was we started with um, pressure is equals to force upon area, right? Force over area, and we also know that pressure is basically force is basically mg for the liquid over a, and mass you can change the mass with density times volume and over times g over a, and you can convert the volume with base area into height times g over a, right? So cancel and you are left with rho gh. Okay, is that clear? जी sir. Perfect. Let's move on. The variation was height h of the total pressure on the base, uh, total pressure P on the base of the cylinder, and A is shown in figure 2.2. Explain why the line of the graph in figure 2.2 does not pass through the origin. Janab. So okay, so if you consider this cylinder, so you know that the cylinder is open, and there will be atmospheric pressure on the liquid. So, and the atmospheric pressure has a rough value of approximately 1 exponent 5. Okay. So that is why it is not starting from a zero, rather it's starting from some higher value. Okay. Clear now? जी sir. Okay. Let's move on. You just write the pressure due to the atmospheric pressure. Okay. Okay. Let's move on. Use the data in figure 2.2 to calculate the density of the liquid in the cylinder. Hmm. So you have to use the Sir, graph. इसमें pressure और Mm-hmm. Yes. How can you use the figure 2.2? pressure How? दिया हुआ है और height भी दिया हुआ है. And we Okay. know, And what you know? sir, do we subtract 3 and 1 to get the pressure? Do you subtract 3 and 1? Okay, but basically, the common concept over here is that you have to find the gradient, right? Yes? Getting? Oh, ठीक है sir. Okay, so to find the gradient will be pressure over height. If you actually recall the general equation, pressure is equals to rho gh. Okay, so from the gradient of the graph, you can get the value of pressure over h. Okay, right? And at the leftover things would be rho times g. Okay, so from the gradient of the graph we can calculate. So if we do if we do 3 minus 1, and you should notice that this is exponent 5 into 1 exponent 5. Okay, divided by 1.5 minus 0. Okay, so this will be equal to rho times g. Okay, so जरा कैलकुलेट कर दो प्लीज. Uh, 4/3 1.33 exponent 5, I think. Yes. थोड़ा बड़ा value आ रहा है. 130,000. हाँ सही है. वही exponent 130. हाँ सही है. And when you divide it by 9.81, because 9.81 is here, you have to make density the subject. So how much you get? 13,591. Perfect. 13,591. 13,591. Fine. Okay. So 1 3. You can round it off to 600. It looks like the material is liquid, or the substance is liquid. Okay. Fine. Let's try this one. A spring balance is used to weigh a cylinder that is immersed in oil, as shown in figure 4.1.
The reading on the spring balance is 4.8 newtons. The length of the cylinder is 5 centimeters, and the cross-sectional area of the cylinder is 13 centimeters squared. The weight of the cylinder is 5.3 newtons. The cylinder is in equilibrium when it is immersed in the oil. Explain this in terms of the forces Hmm. acting on the cylinder. Yeah. So can you point out the number of forces acting on the cylinder? Is there two, sir? A tension or a weight? Bus? It is in the liquid, और so what is the force तो एक that the ड्रैग liquid used फोर्स to? No. अपस्टैर्स लगेगा. Very good. Okay. They're saying the liquid is in equilibrium, and equilibrium means it is not moving, I think. The spring balance is okay, fine. It's not moving. So the weight, the वेट weight, और अपथ्रस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे. no, don't say that. The weight will act up, downward, okay, and that weight will be equal to, in term of forces acting on they're not asking for the equation, but I'm writing that down, okay. So the weight is the only force acting downward, and tension will act upward plus the up thrust, okay. Thrust, okay, clear. ओके ओके. Clear now, because up thrust will always act in the vertical direction and tension always toward the fixed point, right? Because the cylinder can move, you're holding the spring balance, okay. Now ठीक है सर. let's move on. Calculate the density of the oil. Chin up. Hmm. इसमें formula F is equals to rho GV, volume of the liquid as well. नहीं लेकिन volume. Okay, so acha, if you check the previous part, so they're saying explain in terms of forces acting on the cylinder. The cylinder is in equilibrium, so we have to show. Okay, fine, that's fine. Okay, so calculate the density of the oil. Okay, so first you can it's better to use up thrust. Up thrust is equals to rho gv. Remember rho gv. जी सर. Remember. So fine. So for the up thrust, you can use the stated above it stated equation, and that is weight minus tension gives you up thrust. Okay, clear now? So जी the सर. weight is this much, and the reading on the balance is 4.8. So if you subtract from 4.8, you'll get the up thrust. Okay, because that will be the tension in the string that causes or that shows that value. Okay. So weight is 5.3 and minus 4.8 gives you up thrust. Okay. So up thrust is what we are getting, zero point 0.5. जी सर. Fine. And rho is to be found, and G is 9.81, and volume is the base area into height. Okay. So the base area into height, but they give all of them in centimeters. Okay. So 13 exponent negative 4 into 5 exponent negative 2. Okay, clear हुआ ना? जी सर. निकाल दो please. 784. Perfect. 784, so we write 780. Perfect. Okay, let's move on to this one. Okay, you can do that, the second part. A floating sphere is attached by a cable to the bottom of a river as shown in figure 1.2. The sphere is in equilibrium with the cable at an angle of 75 degrees to the horizontal. Assume that the force on the sphere due to the water flow is in the horizontal direction. The radius of the sphere is 23 centimeters. The sphere is solid and is made from a material of density 82 kilogram per meter cube. Show that the weight of the sphere is 41 newtons. Hmm.
सो 2 मार्क दे रहे हैं। अच्छा जी। So this is that sphere is in equilibrium and they hold the sphere, so it's not moving. It should be in equilibrium. The rightward forces and the leftward forces, the upward forces and the downward forces will all be equal. Okay? So if you mark some forces, so there will be upthrust due to this much volume underwater, and the downward force due to the component in the component of the tension in the cable. Okay, that would be T and sine 75. Okay, and there will be okay. So tension will be in this direction. Okay, and there will be T cos theta force. Okay, in the opposite direction, and the river flow move um, move the ball to the right with some force if we don't know that. Okay, now we can equate the vertically downward force with the with the upward force. Okay, what do you say? I can say that since it is in equilibrium, so T sine theta, which is 75, is acting downward, should be equal to the upthrust. What do you say? सही सर. Okay. And लेकिन सर हम क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम weight is equals to tension plus flow नहीं करेंगे बल्कि एक काम या और नहीं कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई फायदा नहीं है। tension. Bro, they give us the density of the sphere, right? Sorry, the density of the sphere. They also give us the radius, so we can use a density is equals to mass upon volume, no? Right? And the mass is the density is 82, and the volume is going to be, since it is sphere, 4 over 3 pi r cube, right? So 4 over 3 pi and r is 23. Getting that? We are 0.23 per cube, right? So mass, and when you multiply it by 9.81, so you'll get the weight. ठीक है सर. Point multiplied by 9.81. Sir 178. ओए इतना आना चाहिए 41। क्यूब के स्क्वायर के? ओ क्यूब नहीं किया सॉरी स्क्वायर किया था. हम्म Cube multiplied by 9.81. जी सर 40. परफेक्ट। हम्म, आगे आ जाओ। The tension in the cable is 290 newtons. Determine the thrust acting on the sphere. Okay, now we can use um, Newton first law. That is, if the body is in equilibrium, so the upward forces will be equal to downward force, the upward force will be equal to the rightward force. Okay, so since we know the downward force as tension and the upthrust acting on the sphere. So they give us a tension T sine 45 would be equals to upthrust 75. 75 would be equal to upthrust. Okay. Or no, no, no. There should be weight, na? So there should also be weight. So we have to add a weight, and this whole thing will give us the upthrust. Okay, so weight of the sphere is 41, 41, and 290 and sine 75. Okay, निकाल दो जरा। 308. 308. Perfect. Hmm. Explain the origin of the thrust acting on the sphere. Get इसमें that. से इसका definition लिखेंगे. The Like it's origin, when no, basically due to the pressure difference. yes, that works. अच्छा जी, so due to the difference in pressure
at the bottom and 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 at the top of the surface. Fine. Sure. Um, okay. This is also an interesting question. Fine, let's try this one. Yes. A cylinder is made from a material of density 2.7 grams per centimeter cube. The cylinder has a diameter of 2.4 centimeters and length 5 centimeters. Show that the cylinder has weight 0.6 newtons. Chinab, what can you do? सर वही लगाएंगे क्या लगा रही हो? इन्होंने डेंसिटी दिया हुआ है Hmm. और डायमीटर भी दिया हुआ है और लेंथ Okay. तो So density is equals इनको to सर mass upon volume, right? जी सर अब पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा? अच्छा. देखो ना, if they mention a specific shape, okay, if they mention the specific shape and they give you the density, then always start with this formula, okay? It works because you can also see that over here they mentioned that there was a sphere, okay, a specific shape, and you know the formula, the volume formula for the sphere, volume, cone, right? Sphere, cone, and cylinder, right? So density is 2.7, but in grams. So we have to convert that as well in grams per centimeter cube, right? So we just need to convert that into exponent -3. So this converts um the density from gram to kilogram. I'm not converting the centimeter into meter because the rest of the thing is also in centimeters. Okay, so density, the volume of the cylinder is pi r square in h. Okay, so pi r is going to be how much? R is going to be diameter divided by 2 radius, 1.2, and squared times h, which is 5. Getting? So, and they're asking for the weight now, so you have to multiply the whole thing by 9.81. Okay, निकाल दो कितना आ रहा है? जी सर सर वैल्यू एक से नहीं हाँ सर वही आ रहा है 0.59 पक्का ना? निकाल के बता रही हो ना? जी सर अरे वाह. मैं नेगेटिव में आया था क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया था Okay, okay, fine. So 0.60. Okay, chalo, done it. Let's move on. Now they're relating pressure and moment together. Yes. The cylinder in A is hung from the um, end A of the non-uniform bar AB, as shown in Figure 3.1. The bar has length 50 centimeters and has weight 0.5 newtons. The center of gravity of the bar is 20 centimeters from B. The bar is pivoted at P. The pivot is 12 centimeters from B. An object X is hung from end B. The weight of X is adjusted until the bar is horizontal and in equilibrium. Explain what is meant by center of gravity. Hmm. A point at which the weight of the body considered to act. Okay. If they ask for the center of mass, then you write consider to concentrate, right? Not act, because the mass is a scalar quantity and it doesn't act. Okay. Okay, fine. Let's move on. Calculate the weight of X. Hmm. Weight of x. Fine. So they give you the cylinder, they give you the x. Okay, fine. They also give you the pivot. The pivot is mentioned. Okay. So you just need to do.
So this force make it turn anti-clockwise. This move clockwise. This also move and anti-clockwise. Okay, getting now. And they're saying, Yes, sir. and they are also saying that it is in equilibrium. Fine. So, can you tell me the distance, please, really quick? 0.6 at a distance of? Uh, 15 minus 12 करेंगे इसको निकालने Very के लिए. good, very good, very good. So तो 38, exponent negative 2. Fine. And then 0.25 a distance, please. 20 cent. Oi, Sorry, 8 centimeters. good. 8 exponent negative 2. Nice. And this would be equal to x times 12. Fine. Now just add them up and divide it by 12 exponent negative 2. This will give you your answer. Quick. Sir, sorry. 2.9. 2.9 आप कह रही हो 2.1 they are getting. 8 into 0.25 plus 6.6 into 3.38 point 0.6 into 38 0.25 into 8 and Oh, नहीं sir, sorry. मैंने गलत कैलकुलेट किया. माशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो कैसे साइंटिस्ट बनोगे यार Sorry, sir. वो Sir, सारी चीजें 2.06. 2 point okay fine 7. yes good so 2.06 so you can write 2.1 good Ajo let's move on. The cylinder is now immersed in water. Um, as illustrated in figure 3.2, an upthrust acts on the cylinder and the bar is not in equilibrium. Explain the origin of the upthrust. Hmm. What you write? एक हम बताएंगे कि वहाँ वो हो रहा है. हाँ बट उसने पूछा अपथ्रस्ट पे आपने बताने सो व्हाट यू राइट फॉर अपथ्रस्ट देखो आप ये लिख सकते हो अभी तक नहीं याद आया सर वही ड्यू टू प्रेशर yes डिफरेंस. yes yes right but अच्छा since अच्छा. they're asking for 2 marks then you can also write um, the pressure increases with depth पहली चीज right so the pressure at the top would be lesser than at the bottom lesser than at the bottom right causes the upthrust okay clear Explain why the weight of X must be reduced in order to obtain equilibrium for AB. hmm yes what do you suggest Sir, क्योंकि mm-hmm. P it's closer to the pivot. No don't say that it is the same system look what you change over here is this thing right hmm so previously there were zero point 0.6 newton of weight acting downward right
So the weight is previously the weight we're acting was 0.6, and now when you place it in a liquid cylinder or in water, so there will be some force due to upthrust act in the upward direction, right? So the resultant force, the resultant downward force would be lesser due to the presence of upthrust, right? Getting now, right? जी सर. So that is why the clockwise, sorry, the anti-clockwise movement reduces, okay, and hence you required lesser x, right, to get the system balance again, okay, clear, ठीक है सर. perfect. मैं लिख नहीं रहा हूँ, आगे चलते हैं. चलो भाई आ जाओ, मुबीन तुम लेक्चर देख के आओ तो पहले तुम्हें फंसा दें, इधर रीड कर लो प्लीज. A liquid of density fills a container to depth h as shown in figure 2.1. The base of the container has area A. Derived from the definitions of pressure and density, the equation pressure equals to rho gh. जनाब, याद है, डेरिवेशन याद है. वो pressure equals to force by area करेंगे पहले. सही है. फिर फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं वेट से, mg से. mg से. सही है. मास को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इज तो इक्वल्स टू फिर मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सही. सो मास टाइम डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ओवर ए, और जी भी आ जाएगा यहाँ पे, राइट. अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है अगली क्या चीज़ है. डेंसिटी तो आ गई, वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. वो area into height. सर एरिया एरिया इंटू इंटू हाइट. हाइट, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ए. फिर a से a cancel और गुड. rho gh. चलो परफेक्ट है, आगे आ जाओ. A small solid sphere falls with constant velocity through the liquid. एक मिनट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब. सर Acceleration zero. देखो अब बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जहन में आनी चाहिए. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर एक्सीलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फोर्सेस के अंदर नेट फोर्स जीरो, इधर राइट. वो वेट और वो अप थ्रस्ट बैलेंस वेरी होते गुड हैं. वेरी गुड वेरी गुड. और कांस्टेंट वेलोसिटी का देखा मतलब सब चेंज देख इन के आया हूँ काइनेटिक लेक्चर. एनर्जी. अच्छा. चलो क्या बात है, मान लिया मान लिया. नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं मानते, अभी तो आसान आसान चीज़ आ रही है. सो वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ओके फाइन. चलो क्या कहते हो अब. State the names of three forces acting on the sphere. आए थ्री सर फोर्सेस. वेट टेन अब Tension, थ्रस्ट up टेंशन. thrust. टेंशन कहाँ से ला रहे हो बे, यहाँ पे टेंशन दिख रही है कहीं. अच्छा अच्छा. ऐसा रट्टा नहीं मारना होता बे. सर एक तो वेट, हाँ. दूसरा अप थ्रस्ट और फिर तीसरा. ग्रेविटी. तीसरा नहीं, ग्रेविटी की वजह से वेट आ रहा है, वेट और ग्रेविटी प्रेशर. फोर्स थोड़ी है. प्रेशर फोर्स नहीं है बे, चमाट रख लो जो भी बोल रहा है ये. ये पता नहीं किसने बोला. अच्छा, यही वाली आवाज आई थी. ब्रो, ब्रो पानी के अंदर मूव कर रहा है ना, पानी का ड्रैग होगा ना, विस्कस ड्रैग, पानी हाँ रेजिस्टिव फोर्स ऐसा जनरेट ड्रैग करेगा, फोर्स. राइट. जी से ड्रैग. सो आपने कहा कि भाई वेट, आपने कहा कि भाई ड्रैग, आपने कहा कि भाई ड्रैग अब रेजिस्टिव को कहते हैं. पानी के अंदर जो रेजिस्टेंस जनरेट होती है ना पानी के वाटर उसको मॉलिक्यूल में, ड्रैग वो कहते हैं. ड्रैग, विस्कस ड्रैग या ड्रैग कहते हैं. सही है. आ जाओ आगे, आ जाओ मुबिन. A word equation that relates the magnitude of these forces. जनाब. इसका क्या सर मतलब? ये एक मिनट एक मिनट अ, एक मिनट एक मिनट. अच्छा देखो, उसने कहा कि स्मॉल फॉलिंग, इसमें फॉलिंग ना, फॉलिंग कह रहा है. फॉलिंग का मतलब है कि नीचे जा रहा है. सही है. नीचे जाने का मतलब है वेट नीचे को लग रहा है. सही है. अब थ्रस्ट हमेशा ऊपर लगता है, राइट. अगर मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में, तो ड्रैग किधर लगेगा मूवी. ऊपर की तरफ. ऑपोजिट. इधर लग जाएगा. सही है. सो ड्रैग प्लस अप थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट, ऐसे ही होना चाहिए. जी. सही हो गया. सो वेट इज इक्वल टू ड्रैग प्लस अप थ्रस्ट. चलो आगे आ जाओ भाई. सर ये के इक्वल्स टू जीरो हो गया है. के क्या है? क्या काइनेटिक एनर्जी है ब्रो. काइनेटिक एनर्जी. अच्छा. चलो आगे आ जाओ. State and explain the changes in energy that occur as the sphere falls. जनाब, क्या क्या देखो होगी. पहले तो जीपी ही होगा ना. हाँ जी, वो किस में कन्वर्ट होगी. काइनेटिक एनर्जी. सामान रख लो बेटा.
ब्रो ओहो। उसने यहाँ पे बोल तो रखा है अभी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। जी कांस्टेंट सर, तो वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं रहा, जीरो है। समझ रहे ना भाई। जी हाँ सर, वो वो वेलोसिटी जीरो हो जाती। फिर वेलोस थर्मल एनर्जी पे कर देंगे। बस बस ये करना है, सही है। मतलब आप ये कहोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वो आपके पास जो है वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, या वर्क डन ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द ड्रैग फोर्स, वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। बस ये कह दो, सही है। सो ग्रेविटेशनल potential energy will be loss in work done against the drag force। सही हो गया। चलो ये इसका कॉन्सेप्ट समझा दे कि समझ नहीं आया। ब्रो, अगर एक एनर्जी चेंज हो, अगर एनर्जी चेंज होती है तो आपके पास जो है एनर्जी कहीं पे लॉस होती है और कहीं पे गेन होती है, राइट। अब यहाँ पे आपके जी पास सर। जब ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट कम हो रही है, सो उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, राइट, लूज हो रही है। सो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी कहा हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के बजाय सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीज़ थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, दैट्स इट। सही है। और वो थर्मल एनर्जी की कन्वर्जन को हमने लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द ड्रैग फोर्स, जो कि थर्मल एनर्जी आप लिख सकते हो, राइट, क्लियर। ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, मुबीन। The liquid in the container is liquid L. Liquid M is now added to the container. The two liquids do not mix. The total depth of the liquid is 0.17 meters. Figure 2.2 shows how the pressure P inside the liquids varies with height x above the base of the container. जनाब। State the value of atmospheric pressure. हम्म 1.01 times 10 to the कैसे power of कैसे पता 5. चल रहा है, कैसे पता चल रहा है भाई। वो मैं लेक्चर में देखा था तो अबे ये ग्राफ से देख के बताने हैं बे, उसने कहा यूज अ फिगर। वो ऐसे रट्टे मत लगाओ बे, फंस जाओगे, मेरे पे टोपी डालोगे फिर तुम लोग। अच्छा जी। अच्छा देखो ना, उसने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या रखा है। द लिक्विड इन द कंटेनर, द लिक्विड इन द कंटेनर इज लिक्विड एल। सही है। लिक्विड एम इज नाउ एडेड टू द कंटेनर, द टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स। सही है। यानी आपके पास जो है, थोड़ा सा अगर बना लें, और द टोटल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज दिस मच। सही है, ये आ गई टोटल डेप्थ, सही है, 0.17। सही है। अच्छा जी, वैसे लॉजिकली अगर हम सोचें तो जो लिक्विड डेंसर होगा उसे नीचे रहना है, जो लेस डेंसर होगा उसे ऊपर रहना है। हम क्या देते हैं कि, अच्छा तुम्हारे ख्याल में मुबीन, तुम्हारे ख्याल में तुम देख के बता सकते हो, ग्राफ देख के बता सकते हो कौन सा डेंसर है और कौन सा लेस डेंसर है। the liquid M less dense हो लिक्विड एम लेस डेंसर है, क्या वजह, तुक्का, हैवी हाई वाला फाइनिंग। तो था। अच्छा, सर वो ग्राफ से पता चल रहा है ना कि वो मतलब कैसे पता चलेगा लिक्विड ग्राफ से। मतलब ग्रेडियंट ना, ग्रेडियंट बताएगा उसका। यस, सही है। सो जब आप ग्रेडियंट निकालोगे, सो आपके पास जो है जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा आएगा, सही है, ये जी को इग्नोर करा दो, जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा आएगा इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। एल का ग्रेडियंट तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, एम का कम लग रहा है, राइट। सो एल नीचे आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा। सही हो गया, ये कहानी सर आ ये गई। P ओवर H है तो वो डेंसिटी थोड़ी बनती। अबे ये बनता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू जी रो कांस्टेंट है ना। जी एच। सही है, मैंने जी हटा दिया वैसे। सही है, अगर तुम जी को इग्नोर कंसिडर कर लो तो भी कोई मसला नहीं है, समझ रहे हो ना। ओके सर ठीक। सही हो गया। अच्छा जी, चलो ये बात आ गई है। अच्छा। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि शोज पी इनसाइड द लिक्विड वेरीज विद हाइट एक्स अबव द बेस ऑफ द कंटेनर। सही है। सो ये कंटेनर है, सही है। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, सही है, यानी जब तुम्हारे पास जो है हाइट जीरो थी, तुम्हारे पास प्रेशर मैक्सिमम था, यानी ये वाला पॉइंट, उल्टा ग्राफ बनाया हुआ है उसने, सही है। यानी जब एक्स जीरो है, सही है, तो ये वाला पॉइंट है। और जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो प्रेशर जीरो हो रहा है, राइट, यानी ये वाला जो पॉइंट है बॉटम वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, ये आपके पास है बॉटम वाला पॉइंट। सही हो गया। और ये वाला पॉइंट जो है वो टॉप वाला पॉइंट है। ओके, क्लियर होता है ये बात, ये बात क्लियर होती है सारों को। यस, जी हाँ सर। सही है। जी सर।
परफेक्ट। सर मतलब सबसे नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है तो इसलिए वो बॉटम पर है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। सर सही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 9.10 वेरी गुड, एक्सपोनेंट सही है ना। और होशियारी नाप रहे थे, अब यहाँ पे ये 9.1 एक्सपोनेंट 4 सही हो गया ना। चलो 9.1 एक्सपोनेंट 4, चलो आगे आ जाओ। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम। क्या यूज़ करोगे? अरे लो, कॉन्सेप्ट तो पता है तुम्हें। हम्म। ग्रेडियंट। जी। सही है। अच्छा। ग्रेडियंट होगा ना। हाँ जी। अब एम तुम्हारे पास आ रहा है, तो तो वो यहाँ किसी भी से शुरू पॉइंट हो से रहा लेंगे या फिर है। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज तुम्हें दिख रहा होगा। इसका एल का ज़्यादा ग्रेडियंट है, एम का कम ग्रेडियंट है। ओके। सो एक तो एंड वाला पॉइंट पकड़ लो, सही है, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, और एक ये वाला पॉइंट पकड़ लो। ये ऑन द सेफ साइड ये वाला ले लो। ये यही ले लेते हैं यार। एक तो स्क्रीन की जो है ना ऐसी की तैसी हुई है। ये आ गया, और ये आ गया, सही है। अच्छा जनाब, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.1, सही है, कॉमा 9.15, सही है, और तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा 9, अच्छा जी 0.17, और तुम्हारे पास आ जाएगा 9.10। यहाँ पे भी जो है ना मुझे लग रहा है कोई उल्टा होगा कुछ। सही है, वो एक्सपेरिमेंट 4 है, उसके साथ याद रखना, सही है। सो 9.15 माइनस 9.1, सही है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 लगा दोगे, एक्सपोनेंट 4 यहाँ से आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.17, कितना बनती है? और अच्छा जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर तुम 9.81, नेगेटिव -7142। -7142, -7142, सही है। और तुम इसको डिवाइड बाय 9.81 कर दो, सही, क्योंकि तुम्हें पता है ये डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी था। सर -728.11। सर डिवाइड बाय ग्रेविटी क्यों किया? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन रो जी एच होता है, राइट। सो फोर्स ओवर एच जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट से आ रहा है, फोर्स ओवर एच तो ग्रेडियंट से आ रहा है, और रो और जी हमारे पास पीछे बच रहा है, राइट। समझ रहे हो? जी। परफेक्ट, सही हो गया। सो कितना भाई? 7। सर वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? ब्रो ये डिवाइड में जाएगा ना, जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ डिवाइड होगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। ओके। अच्छा। सही है। कितना बन रहा है? -728। 728, सही, माइनस इग्नोर कराओ, डेंसिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। और कौन लेक्चर देख के आ रहा है? खंसा, खंसा से करवा लें, खंसा जरा करा दो प्लीज़। खंसा कहाँ हूँ, माइक खोल के पढ़ना है। Hello? हाँ यस, ये क्वेश्चन रीड कर लो। A solid cylinder is lifted out of oil by a wire attached to a motor. Figure 5.1 shows two different positions X and Y of the cylinder during the lifting process. The motor is fixed to an overhead beam. The cylinder has cross-sectional area 0.018, length 1.2 and weight 560. The density of the oil is 940. Throughout the lifting process, the cylinder moves vertically upwards with a constant velocity of 0.02. The viscous force of the oil acting on the cylinder is negligible. Calculate the density of the cylinder. जनाब, अच्छा जी, उसने जो है वो आपको वेलोसिटी दे रखी है 0.02 की, राइट, और ये उसने बोला हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? Acceleration is equals to zero, kinetic energy is equals to zero, or चेंज इन this काइनेटिक is एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। change in ओके, kinetic energy. एंड रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, Result. सही। अच्छा, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है जो भी डाउनवर्ड फोर्स होने वाली है और जो भी अपवर्ड फोर्स होने वाली है वो बराबर हो जाएंगी, ऐसे ही। जी। अब इस केस के अंदर डाउनवर्ड फोर्स तो डब्ल्यू आ रही है, अपवर्ड फोर्स में वहाँ पर टेंशन दे रखी है और अपथस आ जाएगा, राइट, तो दो अपवर्ड फोर्स आ रही है, राइट। सो हम्म। दिस टेंशन प्लस अपथ्रस्ट, क्लियर हुआ? जी। खैर, तो अच्छा यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया। अच्छा उसने कहा फिर कैलकुलेट। टेंशन कर दी। जी भाई। टेंशन उन्होंने क्वेश्चन में दी है। नहीं, मैं देखो मैंने अभी ऐसे ही बनाई इक्वेशन सिर्फ समझाने के लिए।
टेंशन उसने दी भी नहीं है, अभी अभी नहीं दी हुई, कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी मैं रैंडमली बस वो सिनेरियो बना रहा हूँ, सही है। अच्छा, उसने कहा ठीक। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। सो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर के लिए मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। कौन सा मास दे रखा है उसने, देखा मास देखा। नहीं तो अबे, वो वेट है ना, तो है हाँ ना, तो मास निकल जाएगा नहीं। सही हो गया। 56। सो 56 डिवाइडेड बाई 9, 560 डिवाइड बाई 9.81, सही है, मास आ गया, चलो सही है। अच्छा जी, वो बच्चे चल जाएगा, क्या बोलते हैं अपना, वॉल्यूम पे चल जाएगा खर्चा सिलेंडर का, हाँ, कैसे। हमारा एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करके वेरी गुड, 0.018 इंटू 1.2 निकाल दो, कितना आता है। 1.233। आप कह रही हो 1 आई, इतना कम, नहीं आना चाहिए। ऐसे तो नहीं आना चाहिए यार, नीचे 70। पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज हैं, ऊपर जो है वो एटलीस्ट हंड्रेड्स में तो आने चाहिए, नहीं। नो सॉरी, 26, 2642। 2642, ओके। सो 2600 डबल जीरो ले लेते हैं, 2642, सही हो गया, 2SF के अंदर, चलो आगे आ जाओ। Cylinder at position X show the upthrust due to the oil is 200 meters. अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने जो है ना वो ये चीज़ें दे दी हैं, क्या उसने टेंशन के बारे में कोई बात आपको बताई, डेंसिटी ऑफ द ऑयल दी हुई है, और ये दिया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बताया। चलो, अगर हम इस सिलेंडर देखें, तो सिलेंडर पे जो वेट लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है 560 का, सही है। और सिलेंडर पे जो अपवर्ड फोर्स लगनी चाहिए उसने कहा वो निकाल दो, सही है, अप थ्रस्ट, वो हमें शो करनी है बेसिकली, सही है। तो जो हमारे पास टेंशन उसने दी भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। अदर देन दैट हम यूज़ कर सकते हैं फिर अप थ्रस्ट डायरेक्ट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी, ये सर अप थ्रस्ट का रिजल्टेंट फार्मूला। फोर्स वाला क्यों नहीं यूज कर सकते? ब्रो वैल्यूज़ नहीं दी हुई ना, टेंशन की वैल्यू नहीं दी हुई, सही है, अच्छा। टेंशन को कुछ भी नहीं दिया हुआ, सही, फंस जाओगे। सो रो जी वी, रो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल लेना है, ओके, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर मत 940। लेना। 940, परफेक्ट, 9.81, और वॉल्यूम तुम्हारे पास आ जाएगा 0.018 इंटू 1.2, राइट। जो वॉल्यूम सिलेंडर का होने वाला है वही वॉल्यूम जो सिलेंडर ऑयल का डिस्प्लेस करेगा, तो इस वजह से हम सेम ले रहे हैं, चलो निकाल दो कितना बनता है। 199। 199.18। सही हो गया, सो 200 हो जाएगा, परफेक्ट, चलो भाई आगे आ जाओ, कहाँ से आगे चलो। अरे मैंने करना नहीं। Calculates for बिल्कुल। the moving cylinder. हम्म। For the moving cylinder at position X, the tension in the wire. अच्छा, एक्स क्या है भाई, अच्छा एक्स, ओके। टेंशन इन द, अब यहाँ पे आसान हो गया, सो ये अब आपको पता है कि भाई वेट आपके पास यहाँ पे लग रहा है डाउन, माइनस करेंगे ना सर इसमें। वेरी गुड। अब थ्रस्ट ऊपर जा रहा है, रट्टा लगा के बैठो तुम, बिल्कुल हैवी किस्म का रट्टा लगा के बैठो, ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, नहीं सर, समझ के कर रहा हूँ ये वाला। पता नहीं कहाँ से समझ के कर रहा हूँ। अच्छा, चलो मान लेते हैं। सो 560 माइनस 200 इज इक्वल टू टेंशन, डोंट से कि सर देखा, अच्छा मैं भी वही तो बोल रहा था। अच्छा, कितना आता है, 360. 360, चलो आगे आ जाओ। The power output of the motor. पावर आउटपुट, ओके। अच्छा जी, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता था, पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स टाइम्स वेलोसिटी होता था, राइट। और फोर्स कौन सी वाली फोर्स, वो फोर्स जो कि टेंशन इस पे लग रही है, स्ट्रिंग जो फोर्स, मतलब स्ट्रिंग पे जो फोर्स है, राइट। क्योंकि वही फोर्स जो है वो बेसिकली मोटर जनरेट कर रहा है लिफ्ट करने के लिए, ओके, ऐसा समझ लो ना। और ये आ गया, अच्छा किसी और को नहीं समझ में आया तो बीच में बोल सकते हैं, एंड में पहुंचा के मत बोलने के, समझा दे पूरा, सही है ना। सर अच्छा ये जी, पावर वाला क्या समझाना? देखो पावर का फॉर्मूला उसने आउटपुट पावर बोला हुआ है, सो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, सही है। अब सही। फोर्स, आप वो फोर्स देखोगे जो कि मोटर लगा रहा है, राइट, मोटर से वायर कनेक्टेड है, तो इसलिए वायर में जो फोर्स हो रही है हमने वो वाली फोर्स लेनी है, ना तो अब थ्रस्ट लेना है ना तो वेट लेना है, ओके। तो इस वजह से जो हमने स्ट्रिंग में जो वायर के अंदर जो टेंशन निकाली है, दैट इज अ फोर्स
जो कि मोटर जनरेट कर रहा है, राइट। और वेलोसिटी उसने क्या रखा है, कांस्टेंट, और वो उसने दे रखी है 0.02, राइट। समझ लो ना। जी। चलो भैया आ जाओ, निकाल दो कितना बनता है। 72. कितना, 32? 72. 72। 72 वाट, फाइन। अच्छा जनाब। सर ये वेलोसिटी उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी ना? अबे लो, गलती हो गई, भंड हो गया। 0.02 है यार, तो वो 0.7.2 हो जाएगा। जी भाई, दी हुई है, यस। आगे आ जाओ, कौन सा आगे आ जाओ। Exactly. क्या कर रही हूँ, खाना वाना खा रही हूँ? नहीं. The पक्का? cylinder is raised with. जी सर, कब का खा लिया. The अच्छा चलो। cylinder is raised with constant velocity from position x to position y. State and explain the variation, if any, of the power output of the motor as the cylinder is raised. Numerical values are not required. कैसे करोगी खंसा, कोई आइडिया? सबसे पहले तो आपने ये सोचना है, पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ऐसे ही। Okay. खंसा यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है मोटर, वो कौन सी वाली फोर्स हमने कंसिडर की हुई है? Motor. टेंशन कंसिडर की हुई है। जी. सही, टेंशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, अगर आप ऊपर आओ। सो टेंशन डिपेंड कर रही है वेट माइनस अब थ्रस्ट पे, ऐसे ही ना। जी. वेट माइनस अब थ्रस्ट इज इक्वल टू टेंशन, फाइन। अच्छा जनाब, अब थ्रस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पे, ऐसा ही है। जी. चलो, जब आपका सिलेंडर ऊपर जाएगा, सो सिलेंडर बाहर आने लगेगा जैसे ही ऑयल से। तो इसका मतलब है कि सिलेंडर की जो डेप्थ होगी, यानी जो सिलेंडर की जो इमर्जन होगी, जो सिलेंडर अंदर होगा, सही है, वो कम होता जाएगा, राइट। सो एज सून एज सिलेंडर बाहर निकलता जाएगा, उस पर अपथ्रस्ट डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रो, सॉरी, रो जी वी, राइट। तो जैसे जैसे सिलेंडर बाहर आता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा अपथ्रस्ट डिक्रीज होगा, जैसे ही अपथ्रस्ट डिक्रीज होगा, सही है। सो अगर अपथ्रस्ट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, सो आपके पास जो वो होगा, यानी जो वेट होगा, वो बड़ा होने लगेगा, और यानी जो इनका रिजल्ट होगा वो जीरो, क्योंकि आपके पास वेट जो है वो 560 है, राइट, ये कांस्टेंट है, राइट। इनिशियली अपथ्रस्ट आपके पास है 200, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अपथ्रस्ट कम होते होते अपथ्रस्ट जीरो हो जाएगा, राइट। सो एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, 560 की टेंशन आ जाएगी, सही हो गया। सो आपके पास क्या हुआ कि अब थ्रस्ट डिक्रीज होगा जैसे ही वो जो है ना बाहर आएगा, सो अब थ्रस्ट डिक्रीज होगा तो टेंशन और वेट बराबर हो जाएंगे, उसकी वजह से टेंशन ज़्यादा लगेगी, तो पावर आउटपुट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। क्लियर हुआ? पावर आउटपुट वाला प्रोसेस समझा दिए. देखो, उसने आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई अपथ्रस्ट जो है वो आपके पास जो है वो डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि इमर्ज है लिक्विड के अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। जैसे जैसे जो सिलेंडर है वो बाहर आता रहेगा, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, राइट। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, अपथ्रस्ट डिक्रीज होगा। जब अपथ्रस्ट डिक्रीज होगा, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट वो बड़ा होता रहेगा, ओके। क्लियर ना, ओके. क्योंकि आप एक नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हो, गेट द बिगर रिजल्ट, ओके। अच्छा जनाब, इवेंचुअली जब पूरा आपका सिलेंडर बाहर आ जाएगा, सो अप थ्रस्ट गोज टू जीरो एंड वेट विल बी इक्वल टू टेंशन, राइट। ये भी समझ में आ गया। जी. जब वेट और टेंशन के बराबर हो जाएगा, सो अब आप बेसिकली जो पावर फोर्स के अंदर, जो पावर वाली जो फोर्स के अंदर आप फोर्स रख रहे थे, वो टेंशन इन द केबल रख रहे थे, तो टेंशन इन द केबल इंक्रीज हो रही है, राइट। सो यू जी. हैव टू अप्लाई मोर आउटपुट पावर, ताकि वो आराम से लिफ्ट हो सके कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, समझ रहे हो सर ना। वॉल्यूम वॉल्यूम लिक्विड का होता है ना वॉल्यूम अपथ्रस्ट लिक्विड के का लिए, होता है जी। तो इसलिए वो बाहर निकलता है तो वॉल्यूम उसका जीरो हो जाता है, ठीक हाँ है। जी, देखो यहाँ पे इस केस के अंदर जो वॉल्यूम सिलेंडर का है, वही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, राइट। समझ रहे हो ना। तो अब जैसे जैसे सिलेंडर बाहर निकलता रहेगा, तो लिक्विड, देखो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अगर आप पानी के अंदर कोई चीज़ डालो तो थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है, राइट। तो वो जो डिस्प्लेस वाटर है ना, सही है, उसको बेसिकली हम देख रहे हैं, वो डिस्प्लेस वाटर वापसी अपनी अपनी प्लेसमेंट पे, अपनी जगह पे आता रहेगा, राइट। जब वो पूरा अपनी जगह पे आ जाएगा, अब थ्रस्ट जीरो हो जाएगा, ओके। क्लियर जी भाई, जी समझ सर, रहे हो? ठीक। परफेक्ट, चलो। अच्छा जनाब, तो आपके पास बस आपको ये लिखना है, सही, आप कह दोगे कि भाई एज
सिलेंडर मूव आउट। सही है। आपके पास क्या होगा कि अब थ्रस्ट डिक्रीजेस। सही है। सो टेंशन इन द वायर increases and output power, yeah, so more output power put power will be needed। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? राइट। सो मोर आउटपुट पावर या आउटपुट पावर इंक्रीज वगैरह वगैरह। चलो आगे आ जाओ, कौन सा लास्ट पार्ट है? The rate of energy output of the motor is less than the rate of increase of gravitational potential energy of the cylinder. Without calculation, explain this difference. जनाब कोई आइडिया अभी तक नहीं है? हम्म। अच्छा, उसने कहा द रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट ऑफ द मोटर इज लेस देन। अच्छा, रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट का मतलब है पावर रेट, एनर्जी ओवर टाइम रेट होता है। ओके, सो एनर्जी ओवर टाइम पावर होता है, राइट? और रेट आपको टाइम बता रहा है, ओवर टाइम, राइट? सो पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज लेस देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है। मतलब जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने गेन की है, सही है, वो सारी की सारी कहाँ से आनी चाहिए थी? वो मोटर से आनी चाहिए थी, राइट? यानी अगर आपके पास जो है ये मोटर है, सही है, सो मोटर से जितनी भी एनर्जी मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ये गेन कर रहा है, जीपीई जो ये गेन कर रहा है, वो सारी की सारी कहाँ से आनी चाहिए थी? मोटर से आनी चाहिए थी, राइट? लेकिन उसने कहा कि जितनी सर ग्रेविटेशनल मोटर से पोटेंशियल। कैसे आ रही है? क्या मतलब? भाई मोटर लिफ्ट कर रहा है ना उसको। जब मोटर लिफ्ट कर रहा है तो मोटर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ओके उसमें। ओके। सही है ना? तो मोटर की जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? सही है। तो तो अब उसने कहा कि अगर तो आप नॉर्मल सिनेरियो देखो तो मोटर की एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और मोटर की एनर्जी कम है, राइट? तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कहीं ना कहीं बीच में ये तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, राइट? या तो अब थ्रस्ट में जो है ना वर्क डन निकल रहा है, सही है, क्योंकि उसने कहा कि वो नहीं है, उसने कहा कि ड्रैग फोर्स कुछ भी नहीं है, राइट? टेंशन में कोई कुछ कुछ भी नहीं जाएगा, राइट? सो बेसिकली अप थ्रस्ट की वजह से ना कोई वर्क डन कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा, सही है। यानी वर्क डन जो है वो अप थ्रस्ट की वजह से सिलेंडर पे हो रहा होगा, तो ये चक्कर है, सही है। सो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो अप थ्रस्ट also provide work done for cylinder, राइट? यानी अब होगा क्या कि बेसिकली मोटर मोटर की जो एनर्जी है ई प्लस जो अपथ्रस्ट की वजह से एनर्जी, अब अपथ्रस्ट तो फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस आप करोगे तो अपथ्रस्ट की वजह से एनर्जी आ जाएगी, जो वर्क डन जिसको कह रहे हो, सही है, वो बेसिकली बराबर होगी जीपीई के। सही, और ये सिनेरियो भी ट्रू हो जाएगा, राइट? क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे आ नहीं जाओ। सर, सर एक बार फिर से बताओ। क्या चीज़? ये अब थ्रस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वर्क डन, ये वाला। देखो अपथ्रस्ट आपके पास फोर्स है, सही है, और फोर्स जो है वो आपको जब फोर्स किसी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है तो वो वर्क डन कहलाता है, राइट? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। डिस्टेंस, राइट? अब अपथ्रस्ट आपके पास लग रही है अपवर्ड, राइट? और उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, राइट? तो जी कुछ ना कुछ वर्क डन, यानी कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट की वजह से वर्क डन हो रहा है सिलेंडर पे, राइट? जी और कुछ ना कुछ जो है वो मोटर की वजह से वर्क डन हो रहा है सिलेंडर पे, राइट? सही हो गया। और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों सिलेंडर को अपवर्ड मूव करा रहे हैं, पानी से बाहर निकाल रहे हैं, राइट? सो ये मोटर जी का कंट्रीब्यूशन आ गया और ये जो है वो अपथ्रस्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया, और दोनों मिलके जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? क्लियर हुआ? जी। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। सही हो गया। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ये इब्राहिम से करवा लें, इब्राहिम करा दो जरा।
A cylinder is suspended from the end of a string. The cylinder is stationary in water with the axis of cylinder vertical as shown in figure 2.1. The cylinder has a weight of 0.84 newtons, height h, and a circular cross section of diameter 0.031 meter. The density of the water 1.0 multiplied by 10 raised to power 3. The difference between the pressure on the top and bottom faces of the cylinder is 520 pascals. Calculate the height h of the cylinder. जनाब सर इसमें हमें डेंसिटी दी हुई है सबसे और पहले तो क्वेश्चन को तो क्रैक करो। देखो उसने कहा कि द सिलेंडर इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि नॉट मूव मूविंग, नहीं हो यानी रहा। एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई, रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो गई, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। सही हो गया। चलो भाई ये बात आपको पता चल गई। अगर एक्सेल रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, अप थ्रस्ट अपवर्ड लग रहा होगा, स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होगी। ओके, सो वेट शुड बी इक्वल टू अप थ्रस्ट प्लस टेंशन, राइट। ये भी क्वेश्चन से हट के मैं करा रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आओगे। अच्छा अब उसने वेट दे रखा है तुम्हें। अच्छा जनाब, डायमीटर भी दे रखा है, सही है। वहां से तुम एरिया निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ द वाटर भी तुम्हें दे रखी है। अच्छा यहाँ सर पे उसने कहा लेकिन है हमें कैसे पता कि टेंशन ऊपर है? टेंशन ब्रो, जहाँ पे आप खींच रहे होते हो वहां पे टेंशन होती है ना। अब वो सिलेंडर को ऊपर खींच के रखा हुआ है, सही है। देखो आप जो है ना, कहीं पे भी आपको टेंशन की डायरेक्शन निकालना है ना, तो जिस चीज़ के अंदर टेंशन लग रही है आप उस रोप को कट करो, सही है। तो जब आप उस रोप को कट करोगे तो आप देखोगे वो रोप मूव कहाँ पे करेगी, राइट। अब रोप को बीच से कट नहीं करो, अब रोप को आप यहाँ से कट करो, राइट, क्योंकि आप इस सिलेंडर पे काम कर रहे हो। इस सिलेंडर पे आप देख रहे हो कि ये कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है। जब रोप को यहाँ से कट करोगे तो रोप अल्टीमेटली ऊपर मूव करेगी, राइट। और ऊपर मूव करने की वजह ये है कि वो टेंशन है जो कि रोप को ऊपर मूव करा रही है। समझ रहे हैं भाई? जी सर। चलो। अच्छा जनाब, सो कैलकुलेट द डेप्थ। अच्छा जनाब, उसने आपको कहा कि द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप, वो आपको दे रखा है 520। फाइन। अच्छा जी, और प्रेशर डिफरेंस आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, अगर हम ऐसे कर लें। सर ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। डेंसिटी दी हुई है और हमारे पास सिलेंडर का वेट है, हम मास निकाल हाँ लेंगे चलो डायरेक्ट और ऐसे कर लेते हैं। सिलेंडर का पार स्क्वायर एच। एम जी रो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये कर लेते हैं। सही है। चलो परफेक्ट। सही है। तो मास आपको दे रखा है, वेट आपको दिया हुआ है 0.84 डिवाइडेड बाई 9.81। सही है। चलो भाई, डेंसिटी आपको दे दी है सिलेंडर की। सर डिवाइड बाय 9.81 क्यों, मल्टीप्लाई बाय नहीं होगा? अबे ब्रो, वो वेट दिया हुआ है ना मास निकालने में। हाँ, वेट तो mg होगा ना। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी ना, तो हमें एम निकालना है। सही हो गया, डब्ल्यू ओवर जी ओ इज अच्छा, इक्वल्स टू हाँ एम। सॉरी, क्या सॉरी, हाँ हाँ सर। सही। मैं अच्छा जी। तो अच्छा ये आपके पास आ गया डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास आती है डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर डी। डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर डी भी है, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर तो दी भी नहीं है। डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर नहीं, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर नहीं दी भी, फंस जाएंगे यहाँ पे। सर वो जो वाटर है वो सिलेंडर के अंदर है ना। तो उसका ये मतलब अच्छा थोड़ी है हाँ। कि उसका ये मतलब थोड़ी है कि वाटर की और सिलेंडर की डेंसिटी सेम हो जाएगी। नहीं नहीं मसला हो नहीं। जाएगा। अच्छा जी। चलो हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा रो जी एच। सही हो गया। और ये जो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 520 का। सही है। और यानी ये जो प्रेशर है ये पानी एग्जर्ट कर रहा है इस पे, सही है, ऑयल पे, सॉरी सिलेंडर पे। और लिक्विड का प्रेशर रोज ये चाहते तो वो लगा दिया। सो पानी की डेंसिटी आ गई 1 एक्सपोनेंट 3। सही है। और पानी का ये आ गया 9.81। और जो हाइट है जिस पे पानी फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली सिलेंडर की हाइट है, राइट। और उसकी हाइट जो है अब आपको गिवन है एच की फॉर्म में, वही आपको निकालनी है, राइट। सो आप निकाल लो। 520 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1 एक्सपोनेंट 3 कितना आता है? 0.053। 0.05। चलो आगे आ जाओ। सर एक मिनट। सर जो हमारे पास 520 वो प्रेशर डिफरेंस है ना। जी। प्रेशर डिफरेंस अब थ्रस्ट नहीं होता। प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब थ्रस्ट होता है, अब थ्रस्ट फोर्स होती है, अब थ्रस्ट प्रेशर नहीं होता।
अगर आप तो इस सर प्रेशर डिफरेंस को फोर्स अपॉन एरिया की फॉर्म में लिखते तो वो बन जाता। बोलो क्या बोल रहे हो? तो सर प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच क्यू है। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर होता है ना। प्रेशर डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो लिक्विड के प्रेशर की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है, सही। देखो आपके पास जब आपने सिलेंडर को सबमर्ज किया, सो इसकी ये वाली हाइट अलग है, ये वाली हाइट अलग है, राइट। दोनों हाइट जी डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, राइट। और प्रेशर डिफरेंस, अब चूंकि वो लिक्विड जो है वो प्रेशर जनरेट कर रहा है तो उस वजह से लिक्विड की रॉ जीएच आ गया, राइट। और अगर आप इसी को सॉल्व करोगे फोर्स के लिए तो वो जो फोर्स आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइट डिफरेंस वो आपके पास आ जाएगी अप थ्रस्ट, बस ये है। सही समझा? हो गया जी। अच्छा जी, आगे ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शो दैट द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर 0.39, सही। अब आप अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगा लो, सही है। रो जी वी, सही हो गया। सो रो आपके पास कितना आ रहा है? अब यहाँ पे आपके पास आना चाहिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 एक्सपोनेंट 3, सही है, इंटू 9.81 इंटू 0.053। निकाल दो कितना बन रहा है, आ रहा है? 16.1। ओए, 0.39 आना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कितना बना? सर 519 आ रहे थे। जी सर 519 आप। अबे लो, मसला हो गया ये तो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हाइट डिफरेंस सही निकाला है नहीं निकाला। हाँ, हाइट डिफरेंस हमने सही निकाला है। रोजी, अबे आपकी यार, वॉल्यूम अबे सही है। यार, अबे यार। वॉल्यूम सही है आपकी। वॉल्यूम कैसे सही हो सकती है? हमने वॉल्यूम की जीरो जगह तो पॉइंट हाइट जीरो रखा है। थ्री वन मल्टीप्लाई बाय 0.053। 0.053 इंटू, नहीं जी, इंटू वो जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री वन होगा ना, वॉल्यूम निकालनी। पाई और आर स्क्वायर होता है ना, वो डायमीटर दे रखा है, सो 0.031 डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर, ये आएगा। कर लो। हाँ। जी सर 0.3924। अरे चलो, परफेक्ट हो गया। आगे आ जाओ, हम्म, इब्राहिम आगे आ जाओ। कैलकुलेट द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। अब आपको पता है कि वेट डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रही है, प्लस अब थ्रस्ट भी अपवर्ड लग रहा है, राइट। सो वेट माइनस वेट अब माइनस थ्रस्ट। अब थ्रस्ट इक्वल्स टू टेंशन, सही है। सो वेट आपके पास आया था 0.84 माइनस 0.39, सही है। 0.45। 0.45, परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। The string is now used to move the cylinder vertically upwards through the water. The variation with the time t of the velocity v of the cylinder is shown in figure 2.2. Use figure 2.2 to determine the acceleration of the cylinder at time t equals to 2 seconds. जनाब, सर इसमें हम 2 सेकंड पर हम ग्रेडियंट निकाल देंगे, आई मीन ग्रेडियंट लगा के फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन क्योंकि चलो वेलोसिटी को। सही हो गया, वेरी गुड। सो आपके पास आ गया 2 सेकंड पे, आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास यहाँ सर पे वो कहीं। कन्वर्ट करेंगे ना पहले। हाँ वो कन्वर्ट कर लेना, सही, वरना गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जा रहा सर वो बीच में आ रहे हैं 7.5 और 8 के। है। 7.5 रेट के, 7.5 और सर खैर है एट, 7.5 ले लो। 8.5, 9, 9.5, 10, सो 8 आ रहा है एग्जैक्टली, सही है। सो ये आ जाएगा आपकी 8, खैर वैर नहीं है बेटा, हाँ फंस जाओगे। 8 एक्सपोनेंट -2 सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, माइनस 0 कर दो, सही है। सो ये आ जाएगा। अब देखो वो 2 नंबर दे रहा है, एक्सेलरेशन में तुम्हें लिखना होगा ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सही है, उसमें लिख देना ताकि तुम्हारा मार्क्स बच जाए, सही हो गया। या फॉर्मूला लिखना, ऐसे नहीं कर देना डायरेक्ट, ये वाली जीरो हो। पॉइंट जीरो फोर 0.04। 0.04, परफेक्ट। ये वाली होशियारी नापों के पेपर में नंबर जाएगा, ओके। या तो तुमने लिखना होगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, उसके बाद तुमने सिंप्लीफाई करना, ओके।
अगर डायरेक्ट केवल होशियारी नापोगे नंबर दोनों नंबर जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा, ना आंसर का मिलेगा ना उसका मिलेगा। मतलब क्यों सर डायरेक्ट क्यों? 8 लिख दूं? डायरेक्ट है, डायरेक्ट कुछ भी लिखोगे कुछ एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। डायरेक्ट अगर ये वाली चीज लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है, ओके। क्या लिखूं जिससे नंबर मिलेंगे? सबसे पहले आपने लिखना है फॉर्मूला, सही है। चेंज इन वेलोसिटी, देखो याद रखो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन की वर्किंग नहीं आती, तुम्हें इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, सही, तुम उसका फॉर्मूला लिख दो, लेकिन वो फॉर्मूला क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, ओके। तो तुमने जब पहला ये फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद तुमने ये शो करके दिखाया, और फिर उसके बाद ये है, तो तुम्हें दोनों नंबर मिल जाएंगे, ओके। लेकिन अगर तुमने होशियारी नाप दी, डायरेक्ट ये कर दिया, तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एक भी नहीं मिलेगा, अगर चांसेस सही है तुम्हारा, एक भी नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि आंसर का मार्क जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन के मार्क पे डिपेंडेंट होता है। अगर तुमने कैलकुलेशन का मार्क गेन किया है तो तुम्हें आंसर का मार्क मिलेगा, ओके। और कैलकुलेशन का मार्क ज़्यादातर फार्मूला पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये तो तुम फार्मूला लिखो, ये कॉन्सेप्ट लिखो कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ओके। ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ तुम्हें लिखनी होगी, सही, तब जाके तुम्हें दोनों मार्क मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि तुमने आंसर भी सही निकालो, ओके। आंसर सही निकाला है, वर्किंग नहीं की, यानी फॉर्मूला नहीं लिखा, तुम्हारा नंबर जाएगा, ओके। बी केयरफुल। चलो आगे आ जाओ। इब्राहिम आपने करना है। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम है कहाँ है इब्राहिम? सर मैं म्यूट था, मैं रीड हम्म। कर रहा था. The top face of cylinder is at a depth of 0.32 meter below the surface of the water at time t equals to 0. Use figure 2.2 to determine the depth of the top face below the surface of the water at time t equals to 4. हम्म। डेप्थ का सर कोई फॉर्मूला है? नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। अच्छा अच्छा. जनाब, द उसने कहा कि द टॉप फेस ऑफ इज ना, सही है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सही है। अच्छा, उसने ग्राफ आपको दे रखा है, सही है, ग्राफ की क्या चीज़ आपको वो बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यस इब्राहिम, नो ग्रेडियंट या सर। क्या एरिया? क्या क्या एरिया एरिया. एरिया, सही है। सो अगर ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ग्राफ का एरिया आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा, सही है। अब देखो उसने जो ग्राफ बना के दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड थ्रू वाटर, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ, सही है, वो आप पानी से बाहर निकाल लो, सही हो गया। और अच्छा जनाब, यूज अ फिगर टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर एट टाइम टी इक्वल्स टू 4, सही है। टी इक्वल्स टू 4 पे जितना भी हाइट आ रही है वो निकाल लो। 1/2 इंटू बेस विच इज़ 4 इंटू हाइट विच इज़ 10, निकालो कितने बनते हैं। 5 4 से 20, 20 बन रहा है, 20 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी 0.2 सेंटीमीटर, सही हो गया। अच्छा जी, अब सही 0.2 समझ में आ रहा है किसी को? 0.2 में तो मसला नहीं है। 0.2 मीटर्स नहीं. होगा ना? हाँ मीटर है, मीटर है, ऊपर ट्वेंटी ठीक. सेंटीमीटर 0.2 मीटर है, सही है। अच्छा जी, अब देखो उसने क्या कहा है कि द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर इज एट अ डेप्थ ऑफ 0.32, सही है। अब 0.32 में से वो कितना बाहर आ पाया है, 0.2 मीटर बाहर आ पाया है, तो अभी अंदर कितना होगा, 0.32 माइनस 0.2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी वो किस पोजीशन पे है, ओके। सो कितना आ जाएगा ये निकालो जरा, 0.12, सर 0. 12 ही आएगा मेरे ख्याल से, जी जी। सही है ना। और तुम यहाँ पे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पास जो है, मान लो कि ये पूरी हाइट जो है वो 0.32 है, 0.32 है, सही है। और उसने इतना ऊपर ट्रैवल किया, लेट से इतना ऊपर ट्रैवल किया, सही है, जिसको हमने कहा 0.2 सेंटीमीटर, ओके। सो अभी जो रिमेनिंग हाइट है, ये वाली जो रिमेनिंग हाइट है ये कितनी होगी, वो हमने इन दोनों को माइनस करके निकाला, ऐसे तुम समझ सकते हो, ओके। चलो भाई, ये क्वेश्चन हो गया, निमट गया। चलो यार, ये तो चले जा रहा, बदतमीजी सा क्वेश्चन है यार, ढीठ किस्म का, खत्म ही नहीं होके दे रहा। कर लो भाई, ये भी This कर लो, cell, इसको भी लिफ्ट करा दो। the cylinder in B is released from the string at time 4 seconds. The cylinder falls from rest vertically downwards through the water. Assume that the upthrust acting on the cylinder remains constant as it falls. State the name of the force that acts on the cylinder when it's moving and does not act on a cylinder when it's stationary. हम्म। अच्छा, कौन सी फोर्स जो मूव करते हुए एक्ट करती है और स्टेशनरी पर नहीं? हाँ जी, आ, रेजिस्टिव सर फोर्सेस होती हैं जो कि हमेशा मूविंग में एक्ट करती हैं, सही है, सो ड्रैग। चलो आगे आ जाओ।
State and explain the variation, if any, of the acceleration of the cylinder as it falls downwards through the water. हम्म अच्छा, अब अगर आप सोचो कि भाई ऑब्जेक्ट आपका सिलेंडर है, सिलेंडर पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड, सही है, सिलेंडर पे अब थ्रस्ट लग रहा है अपवर्ड, और ड्रैग इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। अब ड्रैग बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे ड्रैग इंक्रीज होगा, राइट। अच्छा, मतलब वापस पानी में पानी में काट के पानी में डाल दिया ना दोबारा से, स्ट्रिंग को काट दिया, वो पानी में आ रहा है दोबारा, सही है। सो आप ये कह दोगे कि आपके पास जो है वेट एंड अप थ्रस्ट remain constant, okay, but drag increases, so resultant force decreases फिर and रिजल्टेंट फोर्स कौन सी है? अबे इधर एक्स। इन सबको माइनस माइनस करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना, डब्ल्यू वेट जो कि डाउनवर्ड है, माइनस यू माइनस डी। अब चूंकि एक्सेलरेट कर रहे हो तो ये आ जाएगा एम ए, राइट। सो ये आपके पास रहेगी रिजल्टेंट फोर्स, ओके। और रिजल्टेंट फोर्स आपका होता है एम ए होता है, सही हो गया ना। अब सर एक मिनट, weight and upthrust remains constant but drag increases so resultant force decreases। सर ये नहीं समझ आया। ब्रो इसकी जो भी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, मान लो 500 है, सही है, ये इन दोनों की वैल्यू 500 है, सही है। ड्रैग हम्म। इंक्रीज हो रहा है, तो ड्रैग पहले जीरो था, सही, जब माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा, ड्रैग फिर हो गया 100, जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ड्रैग हो जी। जाएगा फिर 200, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 300, ड्रैग जब 400 हो जाए तो माइनस करोगे तो 100 आएगा, राइट। तो रिजल्टेंट जी। फोर्स ये जो माइनस करके जो वैल्यूज आ रही है रिजल्टेंट फोर्स है, ओके। और रिजल्टेंट फोर्स आपकी सिस्टम के अंदर डिक्रीज होती जा रही है, राइट, इस वजह से। और जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, राइट। ये बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फोर्सेस के चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो ये वहाँ पे पूरी डिटेल हमने वहाँ पे जो है डिस्कस की थी, डोंट वरी अगर नहीं समझ में आता है वहाँ पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अभी चिल करो, अभी इस चैप्टर की मेन कैलकुलेशन जो है ना वो समझ में आनी चाहिए, चलो। अच्छा मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड करेंगे। यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं ये तो कम बात। ये कर लेते हैं आज। एक मिनट। सर ये कुछ ज्यादा ही लंबा है। सारे बेटा वैसे ही आ रहे हैं। सर कल एग्जाम है हमारा। अच्छा ऐसा है, चलो फिर चिल करो यार। चलो ये देखो, ये आखिरी के जो क्वेश्चन है ना ये मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, अब सही है ना, तो जब एग्जाम दे के आ जाओ, सही है, तो फिर इसकी जो टेंशन ले लेना इसको कंप्लीट कर लेना, सही है ना। मुजम्मिल मेरी ठीक है खास नज़र है तुम पे, मुजम्मिल सुन रहे हो ना तुम। कैमरे की आंख आपको ही देख रही है। बेटा वो कैमरे से ज़्यादा मैंने फरिश्ते लगाए हुए हैं, इंसान बन जाओ तुम जल्दी से जल्दी, और मुझे ये जो है ना चाहिए कुछ भी करके, ओके। कौन सा चैप्टर? प्रेशर? प्रेशर जी, सही है, मुझे सैटरडे प्रेशर की तैयारी करके दे दूं आपको मैं? तैयारी क्या करेगा, प्लम्बर है क्या, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व अरे चाहिए। बस, बस बेफिक्र हो जाए आप। कब कब आप कब। बेफिक्र हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व चाहिए सारे। तुमने किए हुए हो, तो भी मत अच्छा, मैंने कराओ। किए हैं। हाँ। मैंने नहीं, मैंने किए हुए हैं, बिल्कुल मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? अच्छा तुम कहीं से भी कर। अच्छा। भाई मुझे मंडे की क्लास से पहले पहले ईच एंड एवरीथिंग डन चाहिए, समझ रहे हो। मंडे की क्लास से पहले नहीं, मंडे की क्लास में इंशाल्लाह आप पूछेगा, फिर मैं आपको प्यारे से जवाब दूंगा। अगर वो वही पुराना वाला जवाब मिला मुझे तो बेटा मैं स्क्रीन से बाहर निकल के कूटूंगा। अरे सर, दिखाएं सर स्क्रीन से बाहर, अभी डेमो तो दें। नहीं ना, मैं अभी डेमो दे दूंगा तो तुम सेटिंग करके बैठोगे, बचना कैसे। तो नहीं भाई है। प्लीज थोड़ा सा यार कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले यार, ये क्या हो गया, मतलब कोई जॉब वॉब मिल गई है, अच्छा तुम तो खैर हो वैसे मुलाजिम हो। अरे कसम से मुलाजिम, जॉब मिल जाती ज्यादा बेहतर होता, खर्चा तो मिलता। अच्छा फ्री खर्चा में भी नहीं काम मिल रहा, निकल जलील हो जाएगा। रहे। एक खर्चा अरे तो निकाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बेटा वो खर्चा नहीं होता, करप्शन होती है वो, बड़े लेवल पे उसको अकाउंटेंट करप्शन। बनाया हुआ है मुझे घर का। अच्छा इनिंग्स आउटिंग सारी अपने हाथ में, आप बताएं आपके लिए भी निकालूं कट? प्लीज यार प्लीज, कितना नहीं, कितना हो आपके जाता। उसमें से कट मारूंगा अभी। अच्छा आपके ऐसा। अबे लो, मेरे अम्मा पापा ने मुझे हटा दिया अपने खर्चे से।
अब खुद ही आ जाता है भाई, जो मंगवाना होता है एक फोन घुमाते सब आ जाता है घर पे, समझ रहे हो? क्या बात है, क्या बात है, लेवल लेवल की बात होती है सर। लेवल अलग है ना यार, तुम हमारा पहुंच ही भी नहीं आएगा सकते लेवल। यार। अरे हाँ आ जाएगा सर, आ जाएगा। बस छोड़ो तुम यार, बहुत टाइम लगेगा तुम्हें उस लेवल पे पहुंचने में। तो बेटा ये प्लीज कर लियो, सही है ना? और इसको जो है ना संडे मंडे के मंडे तक क्लास ये से सारे पहले, क्वेश्चंस हाँ कर लूंगा मैं। ओके डन है डन है। इंशाल्लाह। मैंने सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए वहाँ पे, लेकिन बेटा हो जाने चाहिए, आसान चैप्टर है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, सही है? नहीं, समझ आ गया है मुझे वैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कुछ चल मसला होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। ओके डन है ऑन है। चल ठीक है सर, ओके चल सर, अल्लाह ओके हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।